तो वेलकम देवाशीष। हाँ, देवाशीष के बारे में थोड़ा सा बता दो। इज ए वेरी लिविंग प्रैक्टिशनर इन सिलीगुड़ी एंड practicing here for 27 years more than. And he has done his BHMS from Calcutta University in 1994. In 2010, he was introduced to Sahagel method by Dr. Manwar. And that was the turning point of Devashish. Right, Devashish? yes. And he taught belladonna to Devashish, and Dr. Devashish applied the rubric laughing, talking while in a patient, and he got wonderful result. And then he started learning Sahagel method. And with some incident, I came to know that Dr. Devashish is also doing mind method. So I contacted him, and he was residing very near to me. So we both started going to Dr. Abhay Kumar. He is a very close friend of Dr. Mohanty sir. So we started our journey in this way and started learning together from Dr. Abhay Kumar. So one thing is very peculiar in Devashish, which I must say, that is very you can say inquisitive, imbibed inside him, and along with high-spirited. So whenever we go to seminar to attend Dr. Mohanty sir seminar, he always a very disturbing element. हमेशा कुछ ना कुछ पूछता रहता था। थोड़ा सा बोला नहीं, ये क्यों होगा सर, ये कैसे होगा सर। तो सर उसको बोलते थे कि अरे यार इतना क्वेश्चन क्यों करता है, और पीठ भी थपथपाते थे। और उसके कारण से हम लोगों के सिलीगुड़ी ग्रुप बहुत फेमस हो गई। तो एक बार इंसिडेंट याद आता है, हम लोगों की ट्रेन लेट हो गई और हम लोग एकदम पीछे के रो में बैठे। तो मोहंती सर ने जैसे बोला, अरे पीछे क्यों बैठा है, सामने आ। उन्होंने अरेंज करवाया और हम लोगों को सामने बिठाया। तो ही वाज डॉक्टर मोहंती सर का एक प्रिय छात्र रहा है देवाशीष, एंड ही इज ए वेरी कीन लर्नर एंड डज नॉट मिस एनी कॉन्फ्रेंस। हर कोई भी कॉन्फ्रेंस हो, सिलीगुड़ी से एक आदमी जरूर जाता था, और वह है देवाशीष। तो वेलकम देवाशीष, वी आर eager to learn a lot from you today. Please. Also, one thing I want to mention about Devashish Bhai is that he's very close to Dr. Manoj also. Dr. Mahesh Bhai, Delhi ke Dr. Mahesh, right? Na Deva? Yes, yes. So both are very good teachers of our life. So I am very eager to learn from my very old friend. And Deva and we used to meet in Dynamis, right? Deva. Delhi also we had met once. He's a very sweet boy. He's very, there are few people whom I can call boy. Okay. So Deva is one of them. Welcome, bhai. Deva. Mentally, I'm still a boy. Yes, we are. Yes. I think. और वो BUOI वाला boy है वो भी. हाँ? वो BUOI वाला boy है. Buoyancy वाला boy है. मनोज दा? Definitely. नमस्ते सर। नमस्ते। चलो देवा भाई शुरू कीजिए अभी आप। देवा सर will start now. Yes, देवा भाई। Let's start. सबको नमस्कार and hello, friends. आज हम लोग एक दवाई को पढ़ने का कोशिश करेंगे। पहला हम दो केस उस दवाई को बोलेंगे जो एक्चुअली वीडियो केसेस है। तो मैं बोलता हूँ ये एक फर्स्ट केस। ओके, तो शी केम around 2 months back before the rainy season has been started this year. ये बारिश का मौसम स्टार्ट होने के आगे वो आई थी। तो she is a very hale and hearty woman, age around 45 to 48, and she came inside the chamber with very
good sari and good pleated sari and ऐसा एक गहना होता है जो गला में ऐसा पहनता है, वो पहन के चिक टाइप का एक है, वो पहन के आई है, हाथ में मोबाइल एंड वैनिटी बैग। लेकिन यहाँ पर थोड़ा फ्राउनिंग जब when she entered in my chamber, एंड आहिस्ता आहिस्ता आके वो बैठी, around 5 to 6 steps it takes to sit in the patient chair। तो आके वो वैसे ही बैठा हुआ है थोड़ा फ्राउनिंग करके। तो सब बहुत दर्द है, सहन नहीं हो रहा, कुछ कीजिए आप, कुछ कीजिए। हाँ पर दर्द है। Then she started showing his back, यहाँ पर बहुत दर्द है। क्या हुआ, कैसा हुआ, आप थोड़ा बताइए। Then she started describing कि last 7 or 10 days बैक से वो बहुत वो घर का काम कर रही थी, तो ग्रेजुअली ये पेन स्टार्ट हुआ। तो मैं पूछा तो आप घर का काम तो डेली करते हैं, इसमें क्या अंतर हुआ? बोले ना, एक्चुअली क्या है ना, हमारा सामने टूर का प्रोग्राम है। मैंने पूछा कब? बोले मैं कल ही जाने वाला हूँ, लद्दाख एंड लेह लद्दाख में घूमने जा रहा हूँ कोई टूरिज्म पार्टी के साथ। लेकिन वो जाने के आगे हमारा अभी घर अगले 15-20 दिन के लिए बंद रहेगा, तो मैं सब कुछ क्लीन करके वॉश करके फिर जाने का मन बनाया था। तो इसलिए बहुत मैं अच्छा करके सब काम कर रही थी घर का। तो इतना मेरा प्रेशर आ गया कि मेरा बच्चा भी यहाँ पर नहीं रहता है, बेंगलुरु में रहता है, और मेरा हस्बैंड तो आप जानते ही है, सुबह को निकलता है शाम को आता है। ही इज ए गवर्नमेंट जॉब एंड आउटसाइड आउटसाइड दिस सिलीगुड़ी। तो हमको बहुत काम करना पड़ा। उसके बाद आहिस्ता 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 दर्द स्टार्ट हुआ, लेकिन लास्ट 3 to 4 days इट इज अनबियरेबल। तो मैंने बोला कि कुछ करो, अभी इतना इट्स अनबियरेबल, कुछ करो इसका। तो लास्ट 2 दिन से मैं खाना भी नहीं बना रहा हूँ, मैं बहुत चिड़चिड़ा हो गया हूँ। तो मैं हस्बैंड को बोला कि कुछ करो, तो वो पहला दिन कुछ स्टेप्स नहीं लिया, तो मैं दूसरा दिन उसको थोड़ा फटकार लगाया कि क्या करो, मेरा इतना दर्द है, सामने घूमने जाना है, और दर्द उतर नहीं रहा है, मैं पैरासीटामोल ले रहा हूँ फिर भी कम नहीं हो रहा है। तो फिर उसने लेके गया, फिर एक नर्सिंग होम, सिलीगुड़ी का एक नर्सिंग होम का नाम बताया, वहां पर गया। और फिर तो हम लोग पवन को दिखाया। तो मैंने जब भी वो ये बात बोला, मैं पवन को दिखाया। मैं बोला कौन है पवन, किस पवन? मैं उसको पूछा, तो फिर वो पूरा नाम लिया। तो मुझे पता है कि ये डॉक्टर हमारा सिलीगुड़ी में वेरी वेरी गुड ऑर्थोपेडिक सर्जन है, MSMCH है वो शायद। मैं नाम थोड़ा चेंज कर दिया क्योंकि आप जानते ही हैं। तो वो नाम ओनली नाम लिया पवन। तो मैंने बोला पवन क्या आपका परिचित है क्या? तो नहीं नहीं, वो फिर नाम लिया है, ये नाम है उसका। तो उनको दिखाया, बोला कब दिखाया? बोला कल दिखाया। अच्छा, तो फिर क्या हुआ? मतलब कल उसने दवाई दिया है, 3-4 टाइप का 3 मेडिसिन दिया है। और मैंने बोला कि उनको मैं लेह लद्दाख घूमने जा रहा हूँ, तो अब कुछ तुरंत कुछ इसका इंतजाम कीजिए। तो उसने लिखा है, वो दवाई के साथ इंजेक्शन लिख दिया है। मैं इंजेक्शन नहीं लेने वाला हूँ। वो उसने बताया कि इतना जल्दी कुछ नहीं हो सकता है, आपका MRI CT सब करना पड़ेगा, और आपका पास टाइम नहीं है, आप ये इंजेक्शन लेते जाओ
ज्यादा प्रॉब्लम होगा, ये दवाई से नहीं कम होगा तो आप इंजेक्शन ले लेना, इंजेक्शन लेके आप घूमते रहना, नेक्स्ट आके हम लोग देखते हैं इसको क्या होगा, हम इंजेक्शन नहीं लेंगे। तो फिर आप हमारे पास क्यों आए? मैं आपके पास तो मैं आता ही रहता हूँ, जब भी मैं फंस जाता हूँ तो आपके पास आता ही रहता हूँ ना। जब नहीं होता है तो क्या करेंगे? अब बहुत जल्दी कुछ कीजिए यार, नहीं हमारा टाइम भी नहीं है यार, दर्द से मैं फटा जा रहा है, फटे जा रहे हैं मेरे, कीजिए। तो मैंने बोला और नहीं, आप कुछ कीजिए, आप लोग डॉक्टर सब भगवान हैं, आप अगर चाहते हैं तो तुरंत कर सकते हैं। तो हम बोला इंजेक्शन ले लो, आपके पास तो लिखा हुआ है, कोई टेंशन का बात क्या है? बोले नहीं मैं इंजेक्शन नहीं लूंगा, आप कुछ कीजिए, आप लोग डॉक्टर भगवान हैं, तो आप अगर सोचते हैं कि आप मरीज को तुरंत ठीक कर देंगे तो आप ठीक कर सकते हैं। तो मैं बोला कि हाँ मैं अभी त्रिशूल कमंडल और बाघ छाल का ऑर्डर दिया हूँ, बहुत जल्दी वो आ जाएगा, जब आ जाएगा तो भगवान वाला सर्विस भी हम लोग देना चालू कर। तो थोड़ा मजाक किया उनसे। फिर मैंने पूछा तो इस बात को लेके और कुछ कहेंगे, इस बात को लेके आपका कोई चिंता है वगैरह, ये सब जब हम पूछते हैं तो उसने बोला हाँ एक बात है सर, कि हमारा फ्लैट का ऊपर एक, हेलो, आई एम ऑडिबल? Yes, sir. हमारा फ्लैट का ऊपर एक है, एक औरत रहती है, उनका भी यही प्रॉब्लम कमर में है। और उनका बेटी उनके साथ रहता है, हमारे साथ में तो कोई नहीं है। तो मैंने पूछा उनका क्या हालत है, तो उसने बताया कि ये जो औरत है उनका अभी कमर गिर गया है, गिर गया मतलब शी इज बेड रिडन, कमर गिर गया है। 10 दिन 15 दिन बेड में ही पड़ा रहता है, फिर कभी जब थोड़ा दर्द कम होता है तब उसके कुछ करती है, फिर 2 दिन 3 दिन बाद गिर जाती है, पेट में उसका यूरिन स्टूल करना पड़ता है। और इसको चलते उसको, लड़की का 3 साल हो गया है, उसको शादी नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी शादी दे देगा तो उसका हस्बैंड बाहर रहती है, उसका बेटा भी बाहर रहती है, तो उसका घर कैसा चलेगा? और मेरा तो बेटी भी नहीं है, मैं तो अकेली हूँ, तो मेरा तो कंडीशन और भी बुरा हो जाएगा। आप जल्दी कुछ करो। तो मैं बोला आपको कल लद्दाख जाना है, मैं आज आप आए हैं, मैं इतना जल्दी आपको क्या करूंगा? बोले नहीं सर कोई टेंशन मत लो, मैं अभी कल ही लद्दाख नहीं जा रहा हूँ, मैं अभी 2 दिन के लिए, सॉरी नहीं 3 दिन या 4 दिन के लिए मैं कलकत्ता जा रहा हूँ, वहाँ से मैं, हम लोग सब जो टूरिस्ट पार्टी है वहाँ से सब कुछ मिलके हम लोग लद्दाख जाएंगे, तो 4 दिन का तो हमारा टाइम मिल जाएगा। अगर आपका ये दवाई से कम नहीं होता है तो मैं कलकत्ता से आपको फोन करके फिर कोई दवाई ले लेंगे, लेकिन आप प्लीज, और मेरे इसको चलते कुछ अच्छा भी नहीं लग रहा है। तो मैं एक चीज वर्क किया कि वो जब ऐसा ऐसा कर रहा था दर्द से, बीच बीच में ऐसा ऐसा कर रहा था, और फिर तू बैठता था, फिर कुछ ऐसा ऐसा करता था, मतलब थोड़ा हिलता, थोड़ा बॉडी को प्लेस करके। तो मैंने पूछा आप कैसे, बिस्तर में क्या पड़ा हुआ है? बोले नहीं, अगर बिस्तर में रहते हैं तो बहुत पेन होता है, मैं थोड़ा थोड़ा काम करने का कोशिश कर रहा हूँ, एकदम बैठता नहीं हूँ, बैठने से और भी दर्द होता है, और थोड़ा काम करता हूँ चलता हूँ, दर्द के मारे मैं बैठ नहीं पाता हूँ। तो यही है उसका प्रॉब्लम। हाँ, ये मोटा मोटी फर्स्ट केस है। हाँ, और एक चीज वो कर रही थी, जब वो व्हेन शी वाज ऑन द टेबल, उसका मोबाइल उसका सामने ऐसा पड़ा हुआ था, बात कर रहा था, और उसका जो
मोबाइल में वो स्क्रॉलिंग कर रहा था, वो लद्दाख लेह का वो जो टूरिज्म एजेंसी का साथ वो जो जा रही है, हाँ, उसका उसका जो पिक्चर है वो देख रही थी। तो उसका जो पिक्चर है वो देख रही थी। तो मैंने बोला ये कहाँ का, ये बोले वो जो टूरिज्म एजेंसी है वो लोग हमको भेजा है, अ, वो लोग हमको भेजा है तो हम लोग देखते हैं। तो, बीच बीच में देखता रहता हूँ कुछ दिन से। बोले क्यों? बोले हमको बहुत अच्छा लग रहा है कि यहाँ पर जाना होगा, ये होटल में ठहरेंगे, यहाँ पर जाएंगे, ये सब हम लोग देखते रहते हैं, हम भी और हमारा हस्बैंड भी कहाँ का जाएंगे, कहाँ कहाँ ठहरेंगे, ये सब का पिक्चर उस लोगों ने भेजा है। थोड़ा यूट्यूब में भी हम लोग देख रहे हैं कि लद्दाख एंड लेह का वेरियस टूरिंग प्रोग्राम का। ये अच्छा लग रहा है कि हमारा मन अभी वहाँ वहाँ पर ही पड़ा हुआ है। ये है एक, इसका एक बात हुआ था उनसे। ये है फर्स्ट केस। Then we will go for the second case. सेकंड केस जो है, ये सेकंड केस है एक जो एलोपैथिक जो मेडिसिन कंपनी होता है उस कंपनी का एक बॉस टाइप का है, उनको एरिया मैनेजर कहता है। तो वो शायद सिलीगुड़ी में पोस्टिंग था, शायद तो सिलीगुड़ी में ही पोस्टिंग था यहाँ पर। वो हमारे पास बीच बीच में आता रहता था आगे, बहुत दिन हमारे साथ कुछ रिलेशन नहीं था। फिर रिसेंटली अगेन उसका जब दर्द ज़्यादा हुआ तब वो आई है। दर्द मतलब उसका एक पेट में थोड़ा म्यूकस टूल एंड पेट में दर्द, इसका एक प्रॉब्लम है। तो ये इसके लिए ये बहुत साल आगे हमारे पास दवाई लेते थे, बीच में वो नहीं आई थी, नहीं आया था। तो रिसेंटली 5 to 6 मंथ उसका गुवाहाटी में ट्रांसफर हो गया। ट्रांसफर होने के बाद उसका ये प्रॉब्लम ज़्यादा हुआ, तो वहाँ पर वो दवाई लेता रहा, कोई होम्योपैथ से। बीच बीच में वो अपना कंपनी का दवाई भी खाता था, म्यूकस टूल के लिए और पेट का दर्द के लिए। लेकिन उसमें उसको आराम नहीं हुआ, तो फिर बहुत साल बाद हमारे पास आया। तो हम पूछा उनको कि क्या क्या है प्रॉब्लम, सब कुछ वो बोला। तो हमने बोला तो रिसेंटली गुवाहाटी जाने के बाद आपको ये ज़्यादा क्यों हो गया? तो सर आप मत बोलिए, यहाँ पर वहाँ पर जाना पड़ता है, टोटल हमको नॉर्थ ईस्ट में टूर करना पड़ता है, यहाँ पर वहाँ पर जाना पड़ता है, यहाँ का वहाँ का पानी खाना पड़ता है, शायद इसी से हुआ है। मैं बोला हाँ हुआ होगा, तो आप क्या कर रहे हैं? बोले वही हम मेट्रोजिल खाते हैं, हमारा कंपनी का ही दवाई है। कभी कभी वहाँ पर होम्योपैथी डॉक्टर है, उनका भी हम दवाई ले लेते हैं कभी कभी, लेकिन इससे हमारा आराम नहीं हो रहा है। तो मैंने बोला यही है कारण, और कोई इसके बारे में कोई टेंशन या रिगार्डिंग एनी टेंशन पार्ट ऑफ योर लाइफ? तो उसने एक बात बताया कि मैं जब यहाँ था ये प्रॉब्लम इतना प्रोमिनेंट नहीं था हमारा, बहुत ज़्यादा कष्ट नहीं होता था इसके बाद। लेकिन रिसेंटली जब लास्ट 1 ईयर हमारा कंपनी का मैनेजमेंट में कुछ चेंजेस आया है, आने के बाद हमारा जो ऊपर वाला बॉस है उसका भी चेंज आया है। आने के बाद ये कंपनी में हमारा जितना एक होल्ड था वो नहीं रहा। ये कंपनी में नौकरी करने में जो मजा था, आनंद था, वो यहाँ पर नहीं था। फिर ऑफिस पॉलिटिक्स भी चालू हो गया। ऑफिस पॉलिटिक्स चालू हो जाने के बाद से हमारा जो दूसरा ग्रुप है वो हमसे पावरफुल हो गया, और होने के बाद से दे हैव मेड मी ट्रांसफर टू द गुवाहाटी। तो वहाँ जाने के बाद हमको सर अच्छा नहीं लगता है। ये सिलीगुड़ी का जो माहौल है, ये हमारा घर यहाँ पर है, यहाँ पर रहने और काम करने का जो मजा है वो तो वहाँ पर नहीं है गुवाहाटी में। तो यही हमारा एक
ज्यादा बड़ा एक डिस्कंटेंट हो गया हमारा लाइफ में कि मैं कभी कभी सोचता हूँ कि ये काम छोड़ दूँ, लेकिन आप तो जानती हैं थोड़ा पैसा पैसा का इशू हो जाता है। तो लेकिन वहां पर रहने का इच्छा या काम करने का इच्छा कुछ भी नहीं है, यही हमारा एक टेंशन है, हो गया है हमारा लाइफ में। और साथ में अगर ये पेट का ऐसा प्रॉब्लम चलता रहेगा, काम कैसे करेंगे? तो अभी ना रहने का ना काम करने का कुछ मजा नहीं है वहाँ पर। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं दूसरा कंपनी में ट्रांसफर मतलब शिफ्ट हो जाऊँ, इसके बाद हमारा ये शायद ये प्रॉब्लम ठीक होगा। जब तक मैं सिलीगुड़ी में नहीं आ रहा हूँ तब तक शायद ये प्रॉब्लम हमको नहीं मिटेगा। ये जो पहला जो पेशेंट है उनको मैं ये दवाई 6 डोज दिया था, 10 ml में दिया था। और दूसरा जो केस में है उसको मैं 9 डोजेस दिया था TDS करके 3 दिन के लिए, और SOS बोल के और भी 3-4 डोज बना के दे दिया था कि 9 डेज 3 दिन के बाद और अगर कभी आपको ये पेट में दर्द होगा या प्रॉब्लम होगा तो आप ले लेना ये मेडिसिन, एक एक डोज कर। तो बोथ आर गोइंग नॉर्मल। ये मैं मेरा रिसेंट केसेस है, बिकॉज आई हैव गिवन दिस मेडिसिन अर्लियर आल्सो ऑन द basis of mind. These cases also I have given this patient on the basis of mind only, not depending on the physicals. Though physical symptoms were there, लेकिन as we all know कि हम लोग physical symptoms में उतना उतना प्रेशर नहीं देते हैं, तो देते हैं लेकिन उतना सिलेक्शन का पैरामीटर वो नहीं होता है। और all are going, both two cases are going now very good. उन लोगों का प्रॉब्लम अभी नहीं है। वो जो फर्स्ट केसेस हमने बताया था वो कोलकाता जाने से ही वो उसका नेक्स्ट डे से उसका आराम मिल गया था। और ये सेकंड केस को आराम होते होते 15-20 दिन टाइम लगा था, और बीच बीच में वो SOS वाला दवाई लेता रहा। अभी भी वो दवाई पर ही है जो रेगुलर मेडिसिन हम लोग देते हैं। बहुत आर गोइंग नॉर्मल नाउ। तो ये है केसेस। जो फर्स्ट वाला केस है उसका जो है उसका MRI, वो जब घूम के आई थी लद्दाख से, वो उसका MRI में आया था डिस्क बल्जिंग है उनका लंबर में, लेकिन अभी भी एसिम्टोमेटिक है पेशेंट। आई डू नॉट नो हाउ मेनी डेज शी विल बी एसिम्टोमेटिक। जब अगर सिम्टम आएगा तो हम सोचेंगे आफ्टर टेनेम ऑफ कोलोसिन। मेरा जो एक्सपीरियंस है अभी वो 3-4 महीना ठीक रहेगी, उसके बाद अगर दर्द बढ़ेगा तो वी विल ट्राई फॉर 15। यही। Yes. Can we take questions now? हाँ Deba हाँ bhai, हाँ। can I take the response of मैंने the तो audience? ड्रग का नाम बता दिया है अभी। हाँ, बोलते बोलते बता दिया। हाँ, Sorry. तो अगर कोई क्वेश्चन है तो आप बताओ। Yes, response of the audience. What remedy you all feel and what rubrics you all feel? आज सब साइलेंट है आज। हेलो सर। हाँ, फर्स्ट केस में जो लगा वो बोल रहे डॉक्टर पवन लैक ऑफ रेवरेंस है, हाँ हाँ। और अभी का अभी मुझे ठीक करो या इम्पेशंस है या कैरिड डिजायर टू बी कैरिड फास्ट, और आप तो भगवान हो, वो तो है, वो फ्लैटरिंग है। और अभी मेरा बहुत बुरा होगा, यानी उसको एंजाइटी फ्यूचर बहुत है या फियर ऑफ सफरिंग बहुत है। ये सब रूब्रिक ख्याल में आए हैं। अभी फ्लटरिंग। मेडिसिन, हाँ फ्लैटरिंग, वो बोल रही है ना कि आप तो भगवान हो, आप तो तुरंत ठीक कर दो, कर देते हो।
नहीं, फ्लटरिंग में तो क्लोसिंग नहीं है ये। आई टू इंसाइटिंग, ठीक है ना। अच्छा, ओके। ठीक है ना, आप इसको इंसर्टिंग लेना है। हाँ। हम्म। अब फ्लटरिंग में क्या होता है ना मैडम, हम्म आपको फ्लटरिंग करते करते मक्खन लगाते लगाते आपको फ्लैट कर दिया जाता है। और हम्म इंसाइटिंग में आपको ऐसा बात किया जाता है जिससे आपको थोड़ा 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 मतलब, इंसाइटिंग में क्या होता है, जो आदमी आपको इंसाइट कर रहा है वो तो उत्तेजित नहीं होता है, लेकिन आपको उत्तेजित कर देता है। हम्म। और फ्लैटरिंग में मक्खन लगाया जाता है, मक्खन लगाते लगाते आपको फ्लैट किया जाता है। ये दोनों चीज होता है, मतलब मेन डिफरेंस। तो ये हम्म। इसने क्या कहा कि आप लोग तो भगवान हो, आप अगर सोचते हो कि कुछ कर सकते हो, जल्दी पेशेंट को ठीक कर सकते हो, कि आप ठीक कर सकते हो, ये हमको थोड़ा थोड़ा इंसाइट कर देना, जिससे उसको थोड़ा फायदा हो जाए। ठीक है ना। तो इसलिए इट इज द। And flattering is हाँ, not very sincere. हाँ, फ्लैटिंग सिंसियर नहीं है, तो इंसाइट में भी सिंसियरिटी है, ऐसा बात नहीं है, लेकिन वो दोनों का मतलब फेस वैल्यू एक ही हो सकता है, लेकिन प्रोसेस थोड़ा अलग होता है। फ्लैटरिंग थोड़ा 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 एक लॉन्ग प्रोसेस है, इंसाइटिंग में एक शायद एक दो बात होता है। हाँ, Uh, यही डिफरेंस होता है। दोनों ही होता है। फ्लैटरिंग में एक लंबा, आपको ऐसा तो है, आप अच्छे हो, आपका गाड़ी uh, अच्छा है, आपका घर अच्छा है, आपका बेटा अच्छा mm, है, आपका बेटी अच्छा है, ये फ्लैटरिंग चलता रहता है। हाँ, uh, मक्खन में एक छुरी से, पावरोटी में कैसा एक बार तो नहीं लगाया जाता है, ऐसा एक बार दो बार लगाया जाता है। हाँ, फिर mm, उसमें कुछ डाला जाता है, फिर उसको गर्म किया जाता है। ऐसा है फ्लैटरिंग। ठीक है ना। mm. और इंसर्टिंग में जस्ट आपको एक दो बात कह के आपको जो एनर्जी जो थोड़ा डाउन है उसको थोड़ा ऊपर किया जाता है। मतलब इंसाइटिंग में आपको भगवान भी बना देता है, और फ्लैटरिंग हाँ, में शायद यहाँ के बेहतरीन डॉक्टर ऐसा बोलेगा, बट नहीं इंसाइटिंग में जरूरी जरा नहीं, ज्यादा ही चढ़ा के रखते हैं आपको। नहीं जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं, जरूरी या इंसर्टिंग में ऐसा आपको नहीं। उत्तेजित किया जाता है हल्का सा। मेन। और जो उत्तेजित करता है वो कूल रहता है। हाँ, हम्म, ये अच्छा। इंसर्टिंग का बेसिक थिंग है। ठीक है ना। और फ्लैटरिंग में, फ्लैटरिंग इज ए लिटिल, एक हमने बताया ना कि फ्लैटरिंग में थोड़ा लंबा चलता है, और इंसर्टिंग एक दो बात में आपको करके फिर वो डाउन हो जाता है। वो देखता रहता है कि सामने वाला इंसाइट हुआ है या नहीं, उससे हम हमारा काम बनेगा या नहीं बनेगा। हम्म, ऐसा इसके लिए डिफरेंस इंसाइट। होगा। हाँ, बहुत अच्छे। ठीक है ना। शी इज तो मैंने जो किया है उसका, मैंने उस टाइम में जो रूब्रिक सोचा था। सो शी इज मोर कंसर्न अबाउट द अम्यूजमेंट पार्ट में। उसको वहां जाके क्या क्या करना है उसमें ज्यादा वो सुई पड़ी है। दैट इज व्हाई शी वांट्स टू बी टेकन केयर ऑफ द पेन फास्ट, कि वो एंजॉय कर सके उधर। अम्यूजमेंट ज्यादा है उसको, ऐसा है। आप अगर उस टाइम में मैंने जो रूब्रिक लिया था, फर्स्ट है रेफरेंस, लैक ऑफ रेफरेंस। ये जो रूब्रिक है हमारा, ठीक है ना। रेफरेंस वन, रेफरेंस फॉर दोज अराउंड हिम, लैक ऑफ। ये मेरा पहला रूब्रिक था। और सेकंड, वो एक बात बोली जो शायद मैंने भूल गया है केस बोलने का समय। वो बोल रहा था कि डॉक्टर साहब, मेरा ये जो 7 दिन से जो दर्द चल रहा है, 7 या 10 दिन से, मेरा कुछ काम करने का अभी इच्छा ही नहीं है, कुछ एनर्जी ही नहीं है। मेरा आहिस्ता 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 जैसे एनर्जी मेरा छूटते जा रहा है, और मैं बिस्तर में पड़ गया हूँ, और थोड़ा मेरा एक इरिटेशन सा एक हो रहा है मेरे अंदर में। हाँ, ये मेरा बहुत स्ट्राइक किया इसका, ये जो बात है कि आहिस्ता 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 मुझे एकदम बिस्तर में गिर गया हूँ, और मुझे कुछ काम करने का इच्छा नहीं है। मैं
मैं तो शुरू किया था बहुत सारा काम से, और मैं एकदम बिस्तर में गिर गया हूँ अभी। तो यही है, मैं जो रूब्रिक लिया था उस टाइम में, डिल्यूशन स्ट्रेंथ, ऑल हिज स्ट्रेंथ आर फॉलिंग फेलिंग, ये रूब्रिक लिया था उस टाइम में मैंने। डिल्यूशन स्ट्रेंथ फेलिंग हिम, ऑल हिज स्ट्रेंथ आर फेलिंग हिम, मतलब हमारा जो एनर्जी है, हमारा जो स्ट्रेंथ है, हमारा जो पावर है, वो आहिस्ता आहिस्ता मुझे छोड़ रहा है। हाँ, जैसे लगेगा सल्फर का डिल्यूशन, डिल्यूशन थिन ही इज गेटिंग, इट्स नॉट थिन ही इज गेटिंग, डिल्यूशन स्ट्रेंथ, ऑल हिज स्ट्रेंथ वर फेलिंग हिम। और तीसरा हमने एक रूब्रिक लिया था, वो जो मोबाइल में आपने बोला था ना कि वो मोबाइल में देख रहा था, मेरा जो मन उसने, ये मैं एक्चुअली मैं उस टाइम में नहीं लिया, ये मेरा बैक स्टडी का बात है। उसका मन वहां पर ही पड़ा हुआ है, लद्दाख में या लेह में पड़ा हुआ है। वो वही, मतलब उसी का प्यार में वो खोया हुआ है, ये अम्यूजमेंट नहीं है। ये लद्दाख का लेह का जो मजा है, उसका नजारा है, वहां पर इतना सुंदर होटल है, यहाँ पर घूमने का इतना सारा मजा है, ये लोग घूम रहा है, वेरियस यूट्यूब वीडियोस वो देख रहा है। तो ये है डिविजन रूम, ही इज नॉट हिज ओन रूम। रूम में क्या होता है, रूम में अपना एक कंफर्ट होता है, आनंद होता है, मजा होता है। वो अभी ये सिलीगुड़ी में उसका रूम में वो नहीं रहा, उसका अभी पड़ा हुआ है उसका ध्यान वहां पर, लद्दाख एंड लेह में, जहाँ पर वो अभी वो उसका रूम बन गया है। ठीक है ना? तो वहां पर उसका मन पड़ा हुआ है। और वो जो हमारा जो सेकंड केस है, वो केस में मैंने जो एक ही रूब्रिक लिया था, डिल्यूशन ट्रांसफर्ड रूम टू अनदर रूम। मतलब रूम में जो कंफर्ट था, वो सिलीगुड़ी में रह के काम करने का, जीने का जो मजा था, मतलब वो अपना रूम है, वहां पर जो रहने में जो मजा है, वो गुवाहाटी जा के वो मजा नहीं मिल रहा है हमारा। मैं ट्रांसफर हो गया हूँ दूसरा रूम में, जहाँ पर कोई मजा नहीं है, वो हमारा आना पड़ेगा हमारा रूम से। इसलिए वो सोच रहा है कि आई विल चेंज माई कंपनी एंड आई विल कम बैक टू सिलीगुड़ी। वो रूम में अभी वो मजा नहीं है जो हमारा रूम में है। एंड ये था उसका बेसिक रूब्रिक। और उसका भी पेशेंट विद द पेन कभी होम्योपैथी लेता है, कभी एलोपैथी लेता है। हाँ, ये सब कुछ मतलब वो केसेस में था। और आप अगर बहुत सारा रूब्रिक्स है जो despair of recovery, impatience from pain, restless during headache, and restless from pain, and restless tossing about in bed। जब वो बैठा हुआ था तब ऑलवेज समथिंग, कुछ समय बाद में थोड़ा थोड़ा ऐसा ऐसा हिल हिल रहा था। ये ये था उसका अंदर में। और एंगर डिल्यूशन ड्यूरिंग मेनोपॉज विथ, मतलब इसका इस कारण से भी इसका गुस्सा हो रहा था कि मैं इतना काम डेली करता हूँ, अभी मैं बेड में गिर गया हूँ, मेरा स्ट्रेंथ आहिस्ता आहिस्ता फॉल कर रहा है,
और मैं कुछ प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा हूँ मेरा घर में, इस कारण से भी इसका एंगर हो रहा है और उसका पति का ऊपर गुस्सा कर रहा है, तुम जाओ तो, अभी मत, मुझे मत डिस्टर्ब करो, तुम हमको डॉक्टर के पास जल्दी लेके चलो, हमारा अभी पेन सहन नहीं हो रहा है। हाँ, तो ये चीज बहुत इसका, ये जो गुस्सा है ये कोलोसिन में बहुत इम्पोर्टेंट है। जो हमारा जो मेट्रिया मेडिका है, इफ यू गो थ्रू द केम्प सर, if you go to the Metriya Medica, we will find where the pain is better from pressure and from heat, and where it is worse during repose and drive the patient to despair, कोलोसिन will cure. मतलब कोलोसिन का जो दर्द है वो प्रेशर से और हीट से अच्छा होता है, लेकिन वर्स फ्रॉम रिपोज, वो बैठ नहीं सकता है इस जगह में, थोड़ा थोड़ा ऐसा ऐसा हिलता रहता है, कुछ ना कुछ काम करता रहता है। ड्राइव्स द पेशेंट टू डिस्पेयर, पेशेंट को एक डिस्पेयर में आ जाता है कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ और मेरे से कुछ काम नहीं हो पा रहा है, मेरे से कुछ प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है, आई एम इन मेनोपॉज। As soon as the prover of Colocin begins to have pains along the course of nerves, he becomes irritable. Everything vexes him. He works from vexation, screams with pain, walks about room and becomes increasingly anxious as the pain goes on. Disinclination to talk and to answer and to see friends. उसका पति का ऊपर भी उसका गुस्सा आ रहा है, तुम जाओ तो यहाँ से, वहां पर खाना रखा है, खा लो, हमको मत डिस्टर्ब करो। His friends irritate him and he wants to be alone. He has all he can do to stand those terrible pain. अभी उसका तकदीर में ये दर्द को सहन करना ही लिखा हुआ है। In the violent ovarian neuralgias, Colocin, the woman will flex the limb on the painful side and hard against abdomen and hold it there. And physician asks, what happened to give you this pain? आपको ये जो दर्द है कैसा हुआ है? Answer is likely to be, my servant spilled off some dirty water on the handsome rag, मतलब गलीचा या कंबल जो होता है, we had some words over it and this is the result. इससे हमारा दर्द हुआ है। मतलब आप सोचिए कि जो कोलोसिन का जो दर्द है वो डिस्कॉन्टेंट, बाताबाती, झगड़ा, वर्ल्ड, इससे दर्द चालू होता है। Colocin produces a state in the nervous system like that found in individuals who have for years been labored under annoyance and vexation. मतलब कोलोसिन का जो दर्द है वो सडनली चालू नहीं हो जाता है कि कल किसी का कमर में टान लग गया, जो हम लोग स्प्रांग बैक कहते हैं, SPRUNGBAK के स्प्रांग बैक, तो उसमें कोलोसिन का आपको जरूरत नहीं पड़ेगा। कोलोसिन का जो पेन है वो पेट में हो या कमर में हो या दूसरा टाइप में जो फेशियल न्यूरल्जिया हो, हाँ, उसमें जो दर्द स्टार्ट होगा वो बहुत इंसिडियसली ग्रेजुअली स्टार्ट होता है उसका पैथोलॉजी, वो बहुत तुरंत काली हो गया और आज ही कोलोसिन का आपको सिम्टम मिलेगा, ऐसा जनरली नहीं होता है। A man whose business affairs have been going wrong becomes irritable and nervous exhaustion follows. A woman must watch her unfaithful husband
night and day to keep away from other women gradually assumes a sensitive, irritable state of mind and is upset by least provocation. There is a state of कोलोसिन फीवर. ये कोलोसिन स्टेट का फीवर का स्टेट है. आहिस्ता आहिस्ता वो हस्बैंड वो उसका दूसरा वाइफ के साथ देखता है या दूसरा वाइफ के साथ उसको मिलने का लिए रोकता है या हस्बैंड दूसरा वाइफ के साथ बात करता है तो वो उसका इरिटेशन आहिस्ता 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 डेवलप करता है. उसके बाद उसका स्टेट डेवलप करता है. वो इरिटेबल हो जाता है, रेस्टलेस हो जाता है, एनॉयड हो जाता है. हाँ, अपने आप घर में पड़ जाता है. किसी के साथ बात करने का इसका इच्छा नहीं होता है. अपना हस्बैंड, अपना फ्रेंड्स, अपना लोगों के साथ बात करने का इच्छा नहीं होता है. You will seldom find the medicine indicated in strong, healthy people who have suddenly become sick. आपको एक अच्छा वाला एक इंसान जिसका शरीर अच्छा है वो सडनली सिक हो गया है और उसका कोलोसिन का स्टेट आ गया है, ऐसा आपको नहीं मिलेगा. आपको ये स्टेट ग्रेजुअली आपको मिलेगा. तो इसके लिए एक केंसा ने एक अच्छा लाइन बताया है. ये सभी केंट का ही लाइन है, हम जो पढ़ रहे हैं. All the pains are better from pressure, but this is in the beginning. After the pain has been going for several days with increasing severity, the part becomes so sensitive and sensitive to pressure that he cannot endure any touch, aversion to food and aversion to any kind of meals and violent thirst. मतलब ये हम जब फिजिकल में काम करते थे तो हम क्या करते थे कि कोलोसिन पेशेंट कोई भी बीमारी है तो उसको हम लोग बोलते हैं कि हार्ट प्रेशर से उसको आराम होता है. जैसे फेशियल न्यूरोलजिया या सciatica या पेट का दर्द, वहां पर हार्ट प्रेशर एंड हीट से पेशेंट को आराम होता है. लेकिन केंट सर ने एक बहुत अच्छा बात कहा कि अगर कोलोसिन का ये जो हार्ट प्रेशर में रिलीफ होता है, ये कोलोसिन का एक प्राइमरी सिम्टम है. मतलब कोलोसिन का स्टेट जब डेवलप करता है तो अर्लियर सिम्टम है इसका. लेकिन जब ये हार्ट प्रेशर देता रहता है तो उस पार्ट बिकम टेंडर एंड देन ही कैन नॉट एंड्योर द हार्ट प्रेशर. तब आप क्या करेंगे? तब आप कैसे कोलोसिन आप सिलेक्शन करेंगे? उस टाइम में आपको मेंटल सिम्टम में ही आपको जाना पड़ेगा, उस मेंटल स्टेट में जब जाना पड़ेगा कि ये इम्पेशेंट हो गया है एंड इसका स्ट्रेंथ फॉल कर रहा है और ये मेनोपॉज हो गया है, मतलब ये कोई प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है. तब उसका इरिटेशन आता है माइंड में, बहुत एंग्री स्टेट आ जाता है और अकेला रहने का इच्छा होता है. ये सब मिलके उसका रूब्रिक फॉर्म होता है. और कोई प्रश्न है आपको तो आप लोग, मैं शायद अकेले ही बोल रहा हूँ, शायद आप लोग का ये जरूरत है या नहीं. आप अगर कोई क्वेश्चन करते हैं तो मैं इसका उत्तर देने का कोशिश करता हूँ. हेलो Deba, why you give 10M in the first case? एक्चुअली सर आई एम इन दिस सिस्टम फॉर लास्ट अभी क्या 13 ईयर्स हुआ है. And earlier 14 years I was practicing in the physical method. कलकत्ता में. अच्छा. Then हमारा जो गुरु था जिसको मैं फॉलो करता था वो अपने नाम शायद सुना होगा, डॉक्टर एसपी थे. वेरी फेमस मैन. तो मैं उनका कुछ जो चीजें हैं अभी भी फॉलो करता हूँ. उनका जो एंटी माइग्रेटिक अप्रोच है तो ये एक्चुअली सर कहते थे कि कोलोसिन इज ए मेडिसिन फॉर ग्रेट नर्व्स. बड़ा नर्व्स का ये दवाई है. अच्छा. इसका काम नर्व्स का ऊपर होता है.
तो अगर आपको कोलोसिन का ही अगर सिम्टम मिलता है, बिफोर गिविंग यू कोलोसिन यू मस्ट बी श्योर दैट इट इज अ केस ऑफ कोलोसिन, and if it is a case of Collosine, then most preferable potency is Collosine 10M. तो उस टाइम से हमारा एक कोलोसिन का अगर कोई केस मिलता है जो नट्स में इफेक्ट किया है, बाउल केसेस में 200 इज द बेस्ट पोटेंसी व्हाट आई हैव सीन। लेकिन अगर नट्स का केस है, जैसे फिशियल नर्व का केस है और साइटिक नर्व का केस है, मतलब लंबर स्पॉन्डिलाइटिस का केस है, तो मैंने देखा अगर कोलोसिन का सिलेक्शन करता हूं मैं, तो it works best in 10M potency and it will work in one time। मतलब आपको दोबारा आपको दवाई देने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, मतलब दूसरा पोटेंसी या दूसरा मेडिसिन देने का जरूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप 200 देते हैं फिर 1 देते हैं, शायद एक बार दो बार के बाद वो कोलोसिन का बात ही नहीं करेगा, दूसरा दवाई का उसका सिम्टम आ जाएगा। लेकिन आप कोलोसिन अगर 10M देते हो तो एक ही दवाई से उसका रिलीफ हो जाएगा एंड बहुत लंबा वो चलेगा उसका इफेक्ट, शायद वो एक ही दवाई से वो क्योर भी हो जाए। ये थोड़ा मेरा एक आप कह सकते हो इट्स वन टाइप ऑफ माय प्रेजुडिस। ये सर का एक इम्प्रेशन है हमारा ऊपर। No, no, it is out of the experience of Day sir. Dr. Day was very famous. Hello, Devashish. हाँ It is not the prejudice. Dr. S.P. has a very long experienced homeopath. Yes. और उनकी एक एक बात जो है वो ब्रह्म लाइन है। उन्होंने जो कहा है तो ये बहुत सही कहा है, अगर तो कहा उसके है, कारण से तुम्हारा केस बहुत जल्दी निकला। हाँ क्योंकि उनका भी तो prejudice, but हाँ, is a learning from his experience. हाँ क्योंकि उनका भी तो 50 इयर्स का एक्सपीरियंस है ऑलमोस्ट। तो आई एम हिज स्टूडेंट लेटर लाइफ। तो मैंने देखा है सर ने ऐसा करता था, वो डायरेक्टली अगर कोलोसिन का सिलेक्शन होता तो 10M ही दे देता था। तो मैं ये सजेस्ट तो नहीं करूंगा सबको। आप लोग अगर आप लोगों का कंफ्यूजन है तो यू ट्राई इट फ्रॉम 200 या 30, जो भी आपका इच्छा है। लेकिन ये I मेरा think better to go with 50 millismol. हाँ यू कैन ट्राई। Sciatica में दादा मेरा एक्सपीरियंस इन साइटिका इज 6C potency. अच्छा Works very well. In sciatica, if you try 6C potency, it works very well. We tried. I have tried many this thing, but 6C has worked very well for me in many cases. ओके ओके। ये अच्छा, इसमें एम्बिटर्ड में नहीं लिया आपने? एम्बिटर्ड एक रूब्रिक मुझे बहुत लग रहा था, कड़वाहट बहुत ज्यादा आ गया था। प्रैक्टिकली तो कोलोसिन एम्बिटर्ड होता है, उसका जो फेशियल एक्सप्रेशन है ना, वो जो ऐसा जो फ्राउनिंग हाँ, फ्राउन वाला। क्या होता है, हम लोग पेशेंट अगर आएगा अंदर में तो ऐसा कर रहा है तो हम विल टेक द फ्राउन डिस्पोज टू, बट मैं इनिशियली किसी पेशेंट को रूब्रिक नहीं बनाता हूँ। हाँ, कोई अगर न्यूकमर, जैसे शायद इस ग्रुप में बहुत सारा न्यूकमर होंगे, तो जो अगर पेशेंट को ऐसा दिखेंगे आके बैठा हुआ है और आके आया अंदर में और ऐसा अगर है पेशेंट दर्द में ऐसा कर रहा है, तो वो तुरंत उसको फ्राउन डिस्पोज टू वो सोच लेगा। लेकिन ऐसा नहीं करना है हमको, जो मानना है। तो मैं एक्चुअली एम्बिटर्ड भी नहीं लिया उस केस में, मैं 2 ही रूब्रिक लिया था। मैं एक्चुअली इन फर्स्ट केस आई वाज अबाउट टू गिव हिम रस्टक्स, क्योंकि उसने एक बात बताया कि मेरा जो ऊपर माई फ्लैट में रहने वाला है उसका बेटी का ऐसा हो गया है, 3 साल से उसका शादी नहीं हो रहा है। तो मैंने सोचा कि ये एक टाइप का वी आर थिंकिंग ऑफ सैड थिंग्स। हाँ, ये सोचा जाए। लेकिन इसका एक कॉम्पिटिटर रूब्रिक है सर कोलोसिन में। कोलोसिन में एक कॉम्पिटिटर रूब्रिक है जो रास्टस को साथ वो कॉम्पीट करता है। आप देखो रूब्रिक, हॉरिबल थिंग्स एंड सैड स्टोरीज affect her profoundly, misfortune of others. Oh, beautiful. Very beautiful. इसका ये Misfortune of others. हाँ, ये रास्ता का कॉम्पिटिटिव रूब्रिक्स है। बहुत और beautiful. उसमें 2 ड्रग है सर, ठीक है ना। हॉरिबल थिंग्स एंड सैड स्टोरीज इफेक्ट, ये 3 रूब्रिक शायद हम उस टाइम में लिया था। हॉरिबल थिंग्स, सैड स्टोरीज इफेक्ट हर प्रोफाउंडली, मिसफॉर्च्यून ऑफ अदर्स, ये वो
वो मेरा जो फ्लैट फ्लोर में जो रहता है, वो जो औरत है उसका कमर गिर गया है, और इसलिए उसका बेटी का शादी नहीं हो पा रहा है लास्ट 3 साल से। ये Oh, मिसफॉर्चून है वो औरत के लिए। yes, 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 yes. ये हमको, ये जो हॉरिबल स्टोरी है, ये जो सैड स्टोरी है, वो हमको इफेक्ट कर रहा है बहुत। बहुत profoundly इफेक्ट कर रहा हाँ, बहुत प्रोफाउंडली इफेक्ट कर रहा है। है, वेरी तो ब्यूटीफुल। तुरंत मतलब सुपरस्टिशन या सैड थिंग नहीं लेना है। पेशेंट को, टोटल पेशेंट को समझना है कि पेशेंट को क्या बोल रहा है, पेशेंट कहाँ जा रहा है, पेशेंट को कॉन्सर्न कहाँ है, तब उसको जाके फिर रूब्रिक बनाना है। वहां पर रूटा भी है। हाँ, रूटा भी हाँ, ऐसा एक दवाई है। रूटा में इसको क्या करना है, तो रूटा जो है, रूटा भी ऐसे ही बात करता है, लेकिन रूटा हाँ, बेसिकली क्या होता है, रूटा बहुत हीडलेस रहता है, एंड रूटा इज वेरी डिफरेंट। यू विल नॉट फाइंड पोलोसिन इन हीडलेस एंड डिफरेंट रूब्रिक। यू विल फाइंड रूटा इन डिफेंस एंड हीडलेस, बिकॉज रूटा में वो है ना बहुत, रूटा में बहुत अकड़ है कि मैं एक्सक्लूसिव हूँ। हम्म, रूटा में बहुत अकड़ है कि मैं एक्सक्लूसिव हूँ, वो है रूटा का कोर। और इसलिए वो रूटा उसका दर्द लेके वो बहुत बहुत मतलब डिफेंट रहता है, और कुछ नहीं होगा, छोड़ो। वो बहुत हीडलेस भी रहता है। फिर जब उसका दर्द बहुत दिन चालू हो जाता है, तो रूटा को फ्यूचर को लेके बहुत चिंता आ जाता है। अभी क्या होगा मेरा फ्यूचर, वो फ्यूचर के बारे में सोचता रहता है। फ्यूचर तो अभी अंधेरा है। फ्यूचर फ्यूचर फ्यूचर, एब्जॉर्ब अबाउट फ्यूचर। तब जाके रूटा को टेंशन में रूटा आ जाता है कि हमारा अभी क्या होने वाला है। लेकिन रूटा का बेसिक जो कोर है, उसका एक्सक्लूसिवनेस एंड उसका जो पेटेंसी, वो उससे रूटा चालू होता है। और इसलिए मिसफॉर्चून ऑफ रूटा कुछ अलग है। मतलब रूटा का मिसफॉर्चून थोड़ा हीडलेस एंड डिफेंस के बाद फिर उसको ये मिसफॉर्चून का फीलिंग आता है, फिर उसको एंजाइटी अबाउट फ्यूचर आता है। फियर ऑफ बीइंग अरेस्टेड में जाता है फिर वो। हाँ, फियर फियर ऑफ बीइंग हिंडर्ड। उसका रूटा का लाइफ, डिवीजन इंजन। हाँ, रूटा हाँ, रूटा का लाइफ हिंडर्ड हो जाता है। ठीक है ना, तब आता है। लेकिन पहले रूटा ओपियम के तरह कुछ डिफेंस, कुछ हिडलेस रहता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो जब हिंडर्ड फील करता है, हाँ, तब जाके उसका लाइफ हिंडर्ड हो जाता है कि मैं जीवन में चल नहीं पा रहा हूँ, मेरा काम आगे नहीं हो पा रहा है। मेरा अभी हस्बैंड का ये बीमारी है, मेरा बच्चा का ये अभी ये बीमारी है, या वो पढ़ रहा है, मेरे ये बीमारी है, मैं क्या करूँगा। मेरे तो मेरे तो सामने अंधकार है, मेरे तो जीवन क्या होगा अभी कुछ पता ही नहीं। ये है रूटा का हिंडर्ड। तब जाके वो फ्यूचर के लिए सोचता है। लेकिन इनिशियली वो रूटा बहुत अकड़ू टाइप का इंसान होता है, बहुत अकड़ू होता है। हाँ, वो बहुत, ही इज अ वेरी एक्सक्लूसिव मैन। रूटा रूटा का जो बनावट है वो एक्सक्लूसिव है, बचपन से वो एक्सक्लूसिव है। लेकिन कोलोसिन इज नॉट ए एक्सक्लूसिव मैन। वेरी नाइस, वेरी हेलो वेरी नाइस दिबा। देवाशीष, डॉक्टर अफसाना ने रूटा बताया था, मोस्ट प्रॉब्ली इस रूब्रिक के थ्रू। रूब्रिक नहीं लिखा था उन्होंने। हम्म। जैसे तुमने केस शुरू किया था ना, फर्स्ट केस, तो उन्होंने रूटा हाँ, बताया था उस समय। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, हाँ, उसने, थैंक यू टू अफसाना दैट ही, वो बहुत नजदीक में गया है। इस लेकिन हाँ, शायद हम मतलब वो मैसेज नहीं देखा है। लेकिन शायद उनको पता चल जाएगा कि व्हाट इज द थैंक यू सर डिफरेंस बिटवीन। फॉर डिफरेंशिएशन। एक्चुअली मेरा क्वेश्चन यही था कि सर डिफरेंशिएट कीजिए रूटा से, बट आपने उससे क्लियर कर लिया, लेकिन डिफरेंशिएशन कर दिया हाँ हाँ, रूटा और इसमें कोलोसिन में ये डिफरेंस। क्योंकि वो बहुत ही क्लोज जा रहा था। तो लेकिन वो मैं भी क्वेश्चन करनी ही वाली थी, बट आपने उससे पहले डिफरेंशिएट कर दिया। हाँ हाँ हाँ। थैंक यू सो मच सर। वेरी नाइस अफसाना, वेरी नाइस। और कोई अगर कोई क्वेश्चन है जो इफ आई कैन आंसर, आई एम नॉट मास्टर अच्छा, ऑफ। डॉक्टर गायत्री ने फास्फोरस कहा था। वो उन्होंने क्यों फास्फोरस कहा था, एक बार यदि वो बताएं तो उसके साथ डिफरेंशिएट करो। हाँ, मैडम को आप लाइन में लो। डॉक्टर गायत्री बोलिए गायत्री। बेटा, गायत्री। सर, हाँ, गुड इवनिंग सर। हाँ वो सर मुझे वो लग रहा था ना, वो थोड़ा आप इतने अच्छे हो, आप
कर दो, ऐसा ये सब की वजह से थोड़ा फ्रेंडली जो आता है ना फास्फोरस का, वो ले जाया था ब्रदरहुड सेंसेशन टाइप वाला, इसलिए मुझे लगा। और फिर उसका जो आपने बोला पहनावा वगैरह भी एकदम बढ़िया था, इस वजह से मुझे लगा। आप मैडम पहनावा जो है कोलोसिस में आप जाओ, कोलोसिस इज इन द रूब्रिक 40. If you go to the rubric Colossians, she is haughty and reverence to those around him lack of. Lack of reverence, yes. ठीक है ना? तो था वो डॉक्टर कैसा बोल रही थी। हाँ, वो एक्चुअली मैं ये तो एक्चुअली वर्बल केस है। वो मुझे भी बोला है कि हस्बैंड के साथ उसका बात हुआ है घर में। अरे पवन का दवाई से तुम्हारा नहीं हुआ तो क्या हुआ? वो हस्बैंड को कोट कर रहा है कि पवन का दवाई से तुम्हारा नहीं हुआ तो क्या हुआ, तुम देवाशीष के पास जाओ ना, उससे तो तुम्हारा फायदा होता है। स्ट्राइकिंग था ये चीज। वो ना पवन को वो प्रेस्टीज दे रहा है, हाँ ना जी। देवाशीष को प्रेस्टीज दे रहा है, वो बाय टेकिंग द नेम ऑफ द फिजिशियन। तो ये है लैक ऑफ रेफरेंस। हाँ, तो मेरा एक्चुअली रेस्पेक्ट देने वाला मैं था। वो मतलब सैड थिंग्स, वी आर थिंकिंग सैड थिंग्स ऑफ लेके, लेकिन मैं ये जो एक उसका पवन देवाशीष, ये यहाँ पर हमें ना मैं अटक गया कि ये पेशेंट ऐसा क्यों बोल रहा है कि पवन देवाशीष। वहां से मैंने मेरा सिलेक्शन चेंज किया कि ये किसी को रेफरेंस नहीं दे रहा है, किसी को प्रेस्टीज नहीं दे रहा है और ऐसे बोले जा रहे हैं। और तब हमारा मैं ओपन किया, मैंने रिपर्टरी को फर्स्ट मैंने ओपन किया था रूब्रिक रिलीजियस अफेक्शन, वांट ऑफ रिलीजियस फीलिंग एंड रेफरेंस टू दोज अराउंड हिम लैक ऑफ। ये यहाँ से मैंने स्टार्ट किया। तो मैंने फिर वहाँ पर ड्रग देखा, फिर ड्रग देख के मुझे पता चल गया कि ये कोलोसिन का ही पेशेंट होगा, क्योंकि दिस इज द फर्स्ट टाइम आई हैव गिवन कोलोसिन ऑन दिस रूब्रिक। ओके एंड सर यहाँ पर ये भी तो है कि वो खुद को सुपीरियर समझ रही है। अब भले उसने बोला नहीं ऐसा कुछ भी, हाँ बट हाँ, ठीक ही बोला है आपने। वो खुद को सुपीरियर समझता है और देवाशीष और पवन को नीचा समझ। हाँ करता है। जी। यही है हॉटी। दिस इज कॉल्ड हॉटी। हॉटी में खुद को ऊपर लिया जाता है और दूसरों को नीचे किया जाता है। हॉटी का फीलिंग ही ये है। ओ गुड, थैंक यू वेरी मच। ठीक है ना? दूसरा इसका मॉरल यही है फीलिंग भी हॉटी। नहीं है ना, मॉरली भी वो नहीं जानता है कि उसे ऐसा नहीं बोलना चाहिए। हाँ कि किसी हाँ डॉक्टर का सम्मान कर देना मॉरल फीलिंग भी नहीं है। जी हाँ, जी। बहुत इरिटेबल एंड बिटर होता है। ठीक है ना? यही है हॉटी कि वो जी। खुद को बड़ा करेगा और दूसरा को छोटा करेगा। थैंक यू सर। जबकि फास्फोरस बिल्कुल उल्टा है, वो एकदम हाँ, अफेक्शनेट और है, फास्फोरस माइल्ड है। आपको तो आपको वहाँ छोटी सी जगह पर थोड़ा सा डिफरेंस हो गया था। यस। फास्फोरस का हाँ बेसिक, देवाशीष बोलो। फास्फोरस का जो बेसिक कोर है, डिल्यूशन नोबेल ही इज। हाँ, मैं कितना अभिजात हूँ, मैं कितना मेरा जो सोच है, मेरा जो चेहरा है, मेरा जो पैसा है, मेरा जो फैमिली है, मेरा जो सराउंडिंग्स है, मेरा जो घर बार है, सब कुछ, मैं कितना नोबेल फैमिली से हूँ, कितना मैं कितना अच्छा मेरा बैकग्राउंड में मैं बिलोंग करता हूँ। यही है फास्फोरस का वेल। ये नोबेल शो करने का फास्फोरस का जो जुनून है, ये फास्फोरस में रहता है। वो आपको मिलना चाहिए फास्फोरस में। इसलिए फास्फोरस बहुत टिप टॉप रहता है। फास्फोरस आलतू फालतू ड्रेस पहन के आपके सामने नहीं आता है। ये भी अच्छा ड्रेस पहन के आई थी, लेकिन फास्फोरस का ये जो पवन है, देवाशीष, ये सब नहीं बोलेगा। फास्फोरस रेदर आपको फ्लैटर करेगा। ठीक है ना? जी जी, बहुत अच्छा समझ गए सर, थैंक यू वेरी मच। हाँ, फास्फोरस के बातों में जो है ना, हमेशा एक एक बदलाव अभिजात्य रहेगा। झलकेगा। हाँ, आनंद, अभिजात्य झलकेगा। हाँ, फास्फोरस में एक एनर्जी रहता है। फास्फोरस जब अंदर में आएगा आपका चेम्बर में, एक एनर्जी लेके आएगा जो आपको अच्छा लगेगा। आपको फास्फोरस का बात सुनने में ऐसा खराब नहीं लगेगा कि ये देवाशीष बोल रहा है, ये पवन बोल रहा है, ऐसा ऐसा आपको नहीं लगेगा। हाँ, ये निगेटिव एनर्जी नहीं प्रोड्यूस करेगा फास्फोरस। ठीक है ना? एंड अगेन एनीथिंग?
when sir, can I ask you something? हाँ बोलिए ना, हाँ, मैं कोशिश करूंगा. आई एम नॉट मास्टर बट आई विल ट्राई. नो मास्टर. सर वैसे आपने काफी कुछ चीजें क्लियर कर दी, पर जब आपने जब केस स्टार्ट किया था तो उसका रेस्टलेसनेस लग रहा था एंड इम्पेशंस दिख रहा था. एंड अगेन शी इज सेइंग द सेम थिंग, लाइक मुझे जल्दी ठीक कर दीजिए, मुझे ठीक कर दीजिए. And then the second thing, when she called the physician by the name, of course that was lack of reverence. तो सर एंड कैरेट डिजायर फास्ट, तो मेरे को सबसे पहला एक ड्रग स्ट्राइक हुआ था, that was Viretram, but Okay. which was absent in restlessness pain during. हेलो. हाँ हाँ. ये सर स्पेशली Viretram इम्पेशेंस भी पेन इसी फॉर्म तरह है. से ड्रेसअप होके आते हैं एंड somehow we feel कि ये थोड़ा अपने आप को ज्यादा ही समझ रहा है. अच्छा, मनोज कुछ बोलोगे? हाँ हाँ, ये जो है इम्पेशेंस पेन फॉर्म है. कोलोसिंथ को जो है ना, जब पेन होता है ना तो वो उसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता. लैंग्वेज वही रहेगी कैरेट डिजायर फास्ट वाली, बट बेसिकली दिस इज इम्पेशेंस, है ना. जैसे इसमें कैमोमिला प्रेस्क्राइब किया था ना, तुमने बताया था कैमोमिला मेरी बेटी के केस में, वो भी क्या है, इम्पेशेंस था कि दर्द जिसे एकदम थोड़ा भी बर्दाश्त नहीं. एंड सिविल वो बहुत ही बैड लैंग्वेज में बोलेगी, जिसका लैंग्वेज बहुत अच्छा नहीं होगा उस समय. नहीं, मैडम का जो कंफ्यूजन है मैं दूर कर देता हूँ. वेरेट्रम क्यों नहीं दिया हमने? वेरेट्रम में क्या होता है मैडम? वेरेट्रम का पहला क्या बात, वेरेट्रम का 2-3 बात है आपका, वो रहना चाहिए. ओनली कैरेट डिजायर टू फास्ट में, और अच्छा कोई अगर पोशाक पहन के आएगा तो आपने वेरेट्रम दे देंगे, ऐसा ना करने से ही बेहतर रहेगा. आप सोच सकते हैं वेरेट्रम, आप जब एक केस चलेगा आप साइड बाय साइड माइंड में रखिए वेरेट्रम. सर लैक ऑफ रेफरेंस में भी है ना सर वेरेट्रम? है मैडम, है. लेकिन वो जो लैक ऑफ रेफरेंस वेरेट्रम शो कर रहा है, उसका पीछे उसका मंशा क्या है वो देखना पड़ेगा. वेरेट्रम का मंशा क्या होगा? वेरेट्रम का जो बेसिक थिंग्स है वो दो चीज है आपको. एक है उसका सोशल पोजीशन और दूसरा है उसका एफेक्टेशन. ये दो चीज आपको, वेरेट्रम को अगर छोड़ेंगे तो वेरेट्रम मर जाएगा. वेरेट्रम दूसरा को छोटा इसलिए करेगा क्योंकि उसका जो सोशल पोजीशन है उसको बढ़ाने का कोशिश कर रहा है वेरेट्रम. ठीक है ना? एक्चुअली उसको वेल्थ फीलिंग भी बहुत ज्यादा रहते हैं ना देवाशीष. को अगर ऐसा मिलेगा आपको कि वो अगर उसको सोशल पोजीशन इंप्रूव करने का कोशिश नहीं कर रहा है, तो वेरेट्रम शायद, क्योंकि वेरेट्रम को आपको रूब्रिक है डिल्यूशन, ही इज द कम्युनिकेशन विद द गॉड. फियर ऑफ सोशल पोजीशन कंसर्न्ड अबाउट एंड एफेक्टेशन इन एक्शन एंड जेस्चर. ये है वेरेट्रम का कोर थिंग्स. उसको वो सोशल पोजीशन को बढ़ाने के लिए वो दूसरा को छोटा करेगा, वो फिर दूसरा को अपमान करेगा और खुद को बढ़ाने का कोशिश करेगा. जैसे मेरा एक केस याद है, वो मेरा मतलब माइंड में जब हम लोग पढ़ रहे थे, वो माइंड का फर्स्ट ईयर का केस है. मतलब आई एम टेलिंग इट्स ए केस ऑफ 2010 और 11, महंती सर का केस है. सर जब पहला वेरेट्रम लिया था, बहुत इंटरेस्टिंग केस था. शायद वो पेशेंट का कुछ गला में एक तकलीफ था. वो कोई गांव का कोई मुखिया था, तो सर के पास वो आया था उसका पोता को लेके, वीडियो केस था. तो वो कुछ नहीं बोल पाता था, उसका गला ऐसा मोटा होके फूल गया था. शायद कोई कार्सिनोजेनिक बीमारी भी हो सकता है, हमारा अभी याद नहीं क्योंकि उतना साल पुराना बात है. तो वो कह रहा था जब भी साहब कोई क्वेश्चन करता था तो वो पोता को ऐसा होता मतलब बोलो, तुम बोलो दर्द क्या हो रहा है. मतलब तो फिर पोता ने बोलता चला गया कि सर अभी तो ये बात नहीं कर पाता है, और लेकिन वो अभी भी गांव में जो मीटिंग होता है वो मीटिंग में बैठा रहता है बीच में लाठी लेके, और हमको बोलता है कि तुम बोलो. जो ऑर्डर देता है हमारा मुंह में फिश कान में फिश करके बताता है, मतलब व्हिस्परिंग करके बताता है, और हमको वो बोलना पड़ता है, और सबको वो ऐसा ऐसा देखता रहता है, ऐसा ऐसा करता रहता है लाठी को. हाँ, ये एक वेरेट्रम का फीलिंग है. मतलब वो ऑलवेज ही इज हैंकरिंग फॉर हिज सोशल पोजीशन. वो सर के यहाँ पर आने से भी वो कर रहा है,
वो गांव में जब मीटिंग होता है तब भी वहां पर वो ऐसे ही करता है। तो वेरेट्रम को आप सोशल पोजीशन और उसको उसका एफेक्टेशन छोड़ के ओनली कैरेट डिजायर टू बी फास्ट लेके आप वेरेट्रम ना देने से ही आपको ठीक रहेगा। वो वेरेट्रम का कोर है, आप कोर को मत छोड़िए कोई मेडिसिन को। हमें जो लगता है, मैं जो करता हूँ, मैं ओनली चॉइसिंग द रूब्रिक, ऐसा मैं मेडिसिन नहीं देता हूँ। एक केस को पूरा आप समझिए, पूरा समझ के फिर आप रूब्रिक में आइए। इस केस में वो सोशल पोजीशन, वो एफेक्टेशन ये नहीं है जो वेरेट्रम में है। हाँ, इसमें कैरेट डिजायर टू बी फास्ट है, डेफिनेटली है, लेकिन वो तो आप दूसरा रूब्रिक से भी आपको एक्सप्लेनेशन हो सकता है। जैसे इम्पेशेंस विद पेन, उसमें भी पेशेंट बोलेगा कि हमको जल्दी ठीक कर दीजिए, है ना। तो ओनली ऑन द सिलेक्शन ऑफ द रूब्रिक आपने एक मेडिसिन को आप सिलेक्शन मत कीजिए। ये हमारा एक्सपीरियंस का तजुर्बा है, सॉरी एक्सपीरियंस है। हाँ, वेरेट्रम का जो सबसे सिंपल रूब्रिक है ना, डेलूजन हाँ जी, वेल्थ, थैंक यू सर। वो हमेशा साफ साफ पास पास चलेगा, हाँ, जो इस केस में नहीं चल रहा था। वेल्थ वेल्थ जो है ना, डेलूजन, वेरेट्रम हमेशा वेल्थ शो करता है, ये चाहे किसी भी पोजीशन में हो। हाँ हाँ जस्ट आई हैव सीन अ कैंसर पेशेंट, हाँ हाँ हाँ, बहुत खराब कंडीशन में था एंड विद हाई शुगर। तो वो जब गया उसके, तो उसने एकदम टिप टॉप बना रखा था, और अपना रहने का जगह नीचे ऑफिस के साथ ही रख दिया था, ऊपर जाता भी नहीं था, बहुत आलसी था। तो मैंने उसको बोला कि अरे वाह, आप तो बहुत इस उम्र में भी बहुत यंग लग रहे हैं, एंड वो बहुत प्राइड के साथ मुस्कुराया। माँ एकदम सब मेंटेन रखते हैं। रिसेंटली तो मैं उसको मैंने वेरेट्रम दिया था। तो उसका वेल्थ जो है खराब कंडीशन है, कैंसर है, केमो चल रहा है, शरीर के अंदर की पोजीशन बहुत बुरी है, लेकिन बाहर से पूरा अफेक्टेशन है और वेल्थ काफी दिखा रहा है। तो वेल्थ साथ साथ चलना चाहिए वेरेट्रम के, जो मुझे लगता है। हाँ हाँ हाँ, रिसेंटली मेरा एक केस चल रहा है वेरेट्रम का, शायद मैं परसों ही सिलेक्शन किया, उसका वेरेट्रम ही चल रहा है। उनका ही इज एट द एज ऑफ 78 79, अच्छा बिल्ट है पेशेंट का, एंड ही वाज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय। वो जब भी बात करता है कुछ ना कुछ मतलब बात करके फिर उसका पास्ट लाइफ में चला जाता है, और मेरा कैसा वेल्थ था, मैसा कौन कौन सा ऑफिसर के साथ हमारा ज्यादा अच्छा रिलेशन था, अच्छा संपर्क था, ये सब कहता रहता है और ऊंचा स्वर में बात करता है। लेकिन मैंने बोला कि उसका वेरियस इश्यूज है, हार्ट, किडनी, स्पॉन्डिलाइटिस, ये सब इश्यूज चल रहा है। और बोलता है मैं उसको बोलूंगा वो ऑफिसर को, तो मुझे एक एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल का नाम बता कि वहां पर भर्ती कर देगा। मेड्रास में एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल का नाम बता कि मैं अभी फोन करूंगा वो ऑफिसर को, तो मैं वहां पर भर्ती कर देगा। तो मैं पूछता हूँ आप क्यों फोन नहीं करते? नहीं नहीं, मैं वो नहीं करना चाहता हूँ, और मैं वो रिलेशन को यूटिलाइज नहीं करना चाहता हूँ। वो है ठीक है, चलो वो दोस्ती का रिलेशन है, मतलब ऑफिसर के साथ दोस्ती का रिलेशन है, मैं फोन नहीं करता हूँ उन लोगों को। फिर गली का होम्योपैथी डॉक्टर से वो दवाई लेता रहता है। क्यों? यही है वेरेट्रम का कि वो सोशल पोजीशन बढ़ाना चाहता है ऑलवेज, उसको वेल्थ शो करना चाहता है, जैसे मनोज ने बताया। यही है उसका एफेक्टेशन, कि वो रिलेशन दिखाता रहता है इतना जितना उसका नहीं है। गॉड के साथ उसका कम्युनिकेशन वो दिखाना चाहता है, लेकिन उतना कम्युनिकेशन नहीं है जितना वो बोलता है। सर एक यही वेरेट्रम कोर है। सर थोड़ा सा मैं भी कुछ शेयर करना चाहती हूँ। हाँ, एक्चुअली ये हमने एचएचएफ में एक मैम के साथ में थोड़ा दिन टाइम बिताया था। उन्होंने एक केस बताया था कि एक अंधा आदमी था, उसने कॉल करके बुलाया कि भाई मेरे घर आओ। काफी रिच पर्सन था, तो राव सर उनको देखने उनके घर गए। यूटिलिटी के पेमेंट कर रहा है तो घर जाते हैं, तो घर गए ना, तो वो पूरा टोटल ब्लाइंड पर्सन था, लेकिन उसका ड्राइंग रूम के अंदर इतना बड़ा टीवी था, जितना स्क्रीन, जितना वॉल टाइप, मतलब मैक्सिमम जो साइज हो सकता है ना, तो वो टीवी लगा हुआ था। तो सर ने उनको एक ही क्वेश्चन पूछा था कि भाई ये इतना बड़ा टीवी कैसे? तो पहले बात तो उसने अपने वाइफ को बुलाया, तो बदतमीजी से बुलाया कि अरे तुमको पता नहीं डॉक्टर साहब आए? तो और उनको बिठाया। फिर उसके बाद में जब उन्होंने उनसे पूछा कि भाई इतना बड़ा, तो उन्होंने एक ही बात बोला, सर मैं नहीं देख सकता तो क्या हुआ, दुनिया तो देख सकती है ना।
बस उसी बात पे सर ने उनको वेरिट्रोम दी थी कि वो अपनी वेल्थ दिखा रहा था, वो भी इस तरीके से। तो सर ये मुझे एक केस याद आया था सडनली। हाँ हाँ, तो मैडम यही बात है जो दूसरा मैडम पूछ रहे थे कि वेरिट्रम क्यों नहीं दिया कैरिड डिजायर 2 फास्ट लेके और उसका पोशाक को लेके। तो पोशाक तो बहुत सारा मेडिसिन अच्छा पहनता है, कैलकिरिया कार्ड भी पहनता है, प्लेटिना पहनता है, पैलाडियम पहनता है, और सल्फर भी शायद कभी कभी पहनता है। ऑलवेज सल्फर इज नॉट डार्टी। नाइट्रोजन पहनता है, फॉस्फोरस पहनता है, पोशाक बहुत सारा पेशेंट अच्छा अच्छा पहनता है। तो पोशाक को लेके और कैरिड डिजायर 2 फास्ट लेके तुरंत मेडिसिन सिलेक्ट नहीं करना है। आप केस पूरा सुनिए, पूरा सुनने के बाद क्योंकि आप जानते ही हैं इससे आर्ट ऑफ टोटलिटी ऑफ सिम्टम। तो टोटलिटी ऑफ सिम्टम आप जब फिजिकल में करते थे या जो करते हैं वो अगर टोटलिटी ऑफ सिम्टम लेते हैं तो व्हेन यू आर वर्किंग ऑन द माइंड वन व्हाई यू विल नॉट टेक द टोटलिटी ऑफ द सिम्टम। तो पेशेंट को टोटली सुनिए और पेशेंट को कोर में जाने का कोशिश कीजिए, आगे ही उसको मतलब रूब्रिक सिलेक्शन मत कीजिए। रूब्रिक लास्ट में सिलेक्शन करना है। फर्स्ट आप जितना ड्रग चल रहा है या जितना रूब्रिक आपका माइंड में चल रहा है, आप एक क्लीन पेपर लीजिए, आपका सामने ही रखिए ना, उसको 2-4 रूब्रिक लिखते जाइए या आपको 2-4 पॉइंट्स लिखते जाइए जो आपको आ रहा है मन में, लेकिन इसका ऊपर सिलेक्शन मत कीजिए। मैं भी यही करता था जब मैं स्टार्ट किया ये सिस्टम की, 2-4 रूब्रिक लिखता था, 2-4 एंगर, इरिटेबल, पहले पहले तो ऐसे ही आता था। ऐसा शायद डिल्यूशन का कोई वर्ड पुअर आ गया तो ऐसा लिखते जाइए, लेकिन पूरा केस सुनिए, सुनने के बाद अपने रूब्रिक सिलेक्शन कीजिए। पहला रूब्रिक मत सिलेक्ट कीजिए, क्योंकि एक पेशेंट कभी भी मतलब कैरिड डिजायर 2 फास्ट का बहुत सारा कॉम्पिटिटर रूब्रिक हो सकता है। हाँ, तो ये मेरा कहना था। ठीक है सर, कैरिड डिजायर फास्ट इम्पेशेंस में सर डिफरेंस बताएंगे, क्योंकि बहुत सिमिलर है सर। देखिए कैरी में क्या होता है, कैरी में एक हेवी स्टेट से लाइट स्टेट में किसी को कोई ले जाएगा, यही इंप्लाई होता है। और इम्पेशेंस में पेशेंस नहीं रहता है पेशेंट को, अभी ठीक कर दीजिए। मतलब जब जब पेशेंट खत्म हो जाता है एक पेशेंट को, वहां पर कैरी करने का टाइम नहीं होता है। ठीक है, यही है एक बड़ा डिफरेंस। कैरी में आपको हेवी स्टेट से लाइटर स्टेट में लेने के लिए पेशेंट फिजिशियन को आप कहते हैं, लेकिन इम्पेशेंस में आप इम्पेशेंस शो करते हैं, आपको पास पेशेंस नहीं है। कल ही हमको लद्दाख जाना है, लेह लद्दाख में जाना है, आप आज ही आप ठीक कर दो, ये है एक इम्पेशेंस। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर। हेलो, मैंने क्या होगा ना, पेशेंट खुद पहले कोशिश, जब वो कोशिश में सफल नहीं होता है तब वो मदद मांगता है कि आई एम अनएबल टू कैरी, नाउ यू कैरी मी। इम्पेशेंस में ये चीज एब्सेंट रहेगी। सिंपली इससे हम लोग ज्यादा कंफ्यूज कम होंगे। इम्पेशेंस में क्या है ना दादा, बोलिए। where the patience is expected. Simple. I understand impatience where patience is expected. Okay, जहाँ पे सबर थोड़ा सा, आप बोलते भाई साइटिका है, एक दिन में थोड़ी ठीक होने वाला है, थोड़ा सबर करो। ओके, ये जो फिजिशियन को फील आता है ना, भाई थोड़ा सबर कर यार, ऐसा थोड़ी होता है, वहां पर इम्पेशेंस लेने का मतलब वेयर पेशेंस इज एक्सपेक्टेड। ओके, इट्स सिंपल। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत सिंपल, वेरी नाइस। थैंक यू सर। थैंक यू बेटा। Thank you. Good evening, everyone. On behalf of PHF, I want to thank Dr. Debashish Ghosh sir for the wonderful session. Very nicely shared, cases of Polosyn. It was a new learning. Thank you very much, sir, for the wonderful presentation. Thank you, Manoj Jaiswal sir, for the valuable inputs. It was truly a very interesting and a new learning for all of us. Thank you very much on behalf of PHF. Thank you very much, sir. Thank you, Deba bhai, Manoj da. Thank you. Thank you. Thank you. We will surely want to hear you again, Deba. So please be ready.